A very, very warm welcome on my session on remedial classes. As the name goes, it's a session only for remedies. Yes. So to start with the session, I'll start with a short introduction of mine. Friends, I'm Rashmi S. Saraf, an astronumerologist, consultant, coach, and trainer. Many of you know me, but there are some who actually don't know me properly. It's for them, and I represent my company, Numeroscience with Rashmi, key to your success. Friends, I give different kinds of consultations, and I also train professionals to homemakers to become better professionals and also to attain a second source of income via different modalities of numerology. And I give consultations in astrology, numerology, graphology, drawing analysis, pranic healing, etc. But today, friends, I have come up with a very special class that is a remedial class. Friends, as we face many challenges in our journey of life, as we strive for better growth opportunities, and we also try to upgrade and upscale ourselves for more prosperity and abundance, we come across many, many obstacles, many, many struggles, and many problems in our life. And there's where we look for easy, effective solutions, जहाँ हमारा काम आसानी से हो जाए, किसी भी तरह की हमको कोई प्रॉब्लम ना हो. Yes, look for those solutions. So in the search for those solutions, we come across many astrologers or numerologists or different modalities of occult science practitioners. अलग अलग तरह के लोग अलग लोगों के पास जाते हैं. It could be an astrologer, it could be a numerologist, it could be also a practitioner in Reiki or pranic healing or any other modality of occult. And उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उनसे अपनी प्रॉब्लम का solution मांगते हैं. They give us an analysis, and at the end of it, we go for remedies. They check our planetary positions in the chart, they analyze our chart, and they give us easy, effective remedies. It could be as easy like visiting a temple, or it could be as difficult like doing a Greh Shanti ki puja or a very difficult mantra jap with very specific and limitations process. So remedies form a very, very important part of each one's of life. We may be doing it willingly, we may be doing it unwillingly, we may be doing it consciously, we may be doing it unconsciously as a ritual because it has been followed in the family from a long time. It becomes a family ritual and we are following those remedies. So here we understand remedies are very, very important for each one of us to reduce our struggles, obstacles in our life, and of course for a better life and prosperity and abundance. So this class, I'll just give a short demo on the remedial class, which is coming up tomorrow. I'll share 5 very powerful remedies which can be used by anyone, irrespective of their date of birth, irrespective of their planetary positions in their astrological chart, any other modality of occult they are following. They are very, very problem specific remedies. आपको जो specific problem है उसके हिसाब से वो remedy आपको दी जाती है. For example, किसी को नया घर लेना है और वो ले नहीं पा रहा, उसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए, या किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है उसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए. You may be an occult science practitioner, you may be a simple person, but remedies are equivalent for each one of us. Yes, so we'll go about these remedies today. So give me 1 second to share the screen. Yes, I believe the screen is audible and visible and audible to everyone. I'm audible and visible to each one of you. Yes. Thank you so much. So to start with our remedial session,
first remedy I would come upon is sale of property. You have any kind of property, be it rented property, be it a property you are owning, or it may have been passed upon you as a heritage property. It may be a gifted property. You want to dispose that property. आपको वो property बेचनी है. And वो property बहुत सारे efforts करने के बाद भी you're not able to dispose that property. हटो एक बार. लड्डू, तुम क्या कर रहे हैं? I would request all the participants, please put your mics muted. Yeah. बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी वो प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं पा रहे हो फॉर एनी रीजन. अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे आपको, या फिर कोई आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, उसके लिए क्लाइंट नहीं आ रहा है, लोकेशन आपका ऐसा है कि वहां पे वो कोई आता है जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को लेना नहीं चाहता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चला गया है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आ गई है प्रॉपर्टी के ऊपर. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, वेरियस रीजन हो सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी आपका क्यों डिस्पोज नहीं हो रहा है. बहुत सारे हो सकता है आपने उपाय किए हो, आपने बहुत सारे रेमेडीज किए हो उसके लिए, and you are sick and tired, you are not able to sell that property. So here comes a very, very simple and effective remedy for a sale of property. What you have to do, you have to take 2 green cactus plants. Green cactus plants should be in a flower pot. फ्लावर पॉट में जैसे प्लांट्स हम लगाते हैं, किसी भी तरह का पौधा हम फ्लावर पॉट में लगाते हैं, उसी तरह से 2 ग्रीन कैक्टस के प्लांट आपको फ्लावर पॉट में लगे हुए लेने हैं. एंड ये जो 2 कैक्टस के प्लांट्स है, इसको आपको अपनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हो, सपोज अगर वो फ्लैट है, तो फ्लैट की जो आउटर साइड है ना, जो उसका बरामदा का साइड होता है, जो आउटर साइड ऑफ द बरामदा होता है, घर के अंदर वाली साइड नहीं, घर के बाहर वाली साइड का जो भी बरामदा है, बाहर का जो कॉमन एरिया है, जो भी वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मगर होना चाहिए. ऑन सैटरडे you have to keep the 2 cactus plant over there. शनिवार के दिन आपको ये 2 कैक्टस प्लांट वहां पे आपको जाके अपनी प्रॉपर्टी के प्रमाइसेस में जाके रख के आना है. इन केस उस प्रॉपर्टी में कोई भी बरामदा नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसमें कोई बरामदा नहीं है, तो जो उसका फर्स्ट रूम है उसका प्रॉपर्टी का, वहां भी उसको रख सकते हो. If it is a commercial property, it's not a residential property, it's a commercial property, the same rule applies over there. उसका आउटर एरिया कुछ नहीं है, जहाँ पे लास्ट आप ताला लगाते हो उसके जस्ट पहले वाला जो एरिया होता है, वहां पे आपको ये कैक्टस प्लांट शनिवार के दिन 12 से लेकर 4 बजे के बीच में आपको ये 2 प्लांट्स वहां पे इंस्टॉल करने हैं. इंस्टॉल करने के टाइम पे आपका ऐसा इंटेंशन होना चाहिए, ये प्लांट लगाने से मेरी ये प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी डिस्पोज हो जाएगी, इसकी सेल हो जाएगी, एंड ऑल्सो जैसा मैं चाहता हूँ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरे, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कोर्स शुड बी वेरी वेरी रियलिस्टिक. जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार मेरी ये प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी. Remedy seems to be very simple, but believe me, it's a very effective remedy. It's a tried and tested remedy. Clients have also come up with me questions like cactus का plant अगर real नहीं हो, प्लास्टिक वाला हो, तो क्या वो भी काम करेगा? नहीं, वो काम नहीं करेगा. The cactus plant has to be real. प्लांट को जिस पॉट में लगाना है, क्या उसे मिट्टी होनी चाहिए? यस, मिट्टी भी उसमें होनी चाहिए. द प्लांट शुड बी रियल, जिंदा प्लांट होना चाहिए और उसे मिट्टी भी होनी चाहिए. यस, सो ये है हमारी फर्स्ट रेमेडी फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी सेल के लिए हमें क्या करना है? प्रॉपर्टी सेल के लिए हम ये एक सिंपल रेमेडी कर सकते हैं. क्लियर टू एवरीवन? Can you repeat once again? या मे आई नो? बीच में प्रसाद. प्रसाद, या टेल मी प्रसाद जी. नहीं, 12 से 4 के बीच में सैटरडे को रखना है, राइट? यस, बरंडा में. और जब बरामदा रखेंगे में, तो एंड वो
सामने की साइड का बरामदा होना चाहिए। द बालकनी शुड बी ऑन द फ्रंट साइड। सपोज एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो जो फ्रंट में घर में घुसते ही जो पोर्शन होता है, इट कुड बी बालकनी, इट कुड बी जस्ट सिंपल स्पेस। अगर वहां वैसा कोई स्पेस नहीं है, तो उस घर का जो फर्स्ट रूम है आप वहां रख सकते हो। ओके, ताला ठीक है। खोलने के बाद जो फर्स्ट प्लेस आती है, वहां पे आपको इंस्टॉल करने ये 2 प्लांट्स। The property which is in my mind, उसका बालकनी है, दरवाजे के अपोजिट साइड है। योर इतनी वही मैं कह रही हूँ, अगर आपकी बालकनी पीछे की साइड में है, तो ताला खोलने के बाद जो फर्स्ट पोर्शन, जो फर्स्ट स्पेस आपके पास अवेलेबल है, उस स्पेस पे आपको उसको लगानी है। इट कुड बी द पार्ट ऑफ ए रूम, इट कुड बी द पार्ट ऑफ द बालकनी, इट कुड बी जस्ट द स्पेस वेयर यू ओपन योर स्लीपर्स एक्सेट्रा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होती है सामने में। ताला खुलने के बाद जो फर्स्ट स्पेस है, वहीं पे आपको इसको इंस्टॉल करना एंड जो आपने मैसेज बोला है। राइट, एक्चुअली योर वॉइस इज ये क्रैकिंग प्रसाद जी, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू प्रॉपरली। आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट यू। अभी आवाज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओ Tell me, yeah, you're audible now. Please let me know. या सो आपने कंडीशंस है, उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी बेची जानी चाहिए, वो हमें मन ही मन में बोल रहे हैं। Yes, तो इसका yes, yes. Honey, मत में बोलना. You have to just do it mentally. Mentally, you have to राइट affirm. I mean to say, mentally, you have to affirm his property should get sold according to my terms and conditions, but the terms and conditions should be realistic. राइट, Yes, yes. थैंक यू। Most welcome. Excuse me, Didi. Yes, I have a question. yeah, कि please after carry on. planting the cactus plant, do we need to do any watering of the plant every day? Anything of that sort is also required? Ki no, it is not required. No, it's not required. You need not water those plants again and again. But the thing is, कि since cactus does not require that much of seva from anyone, but still आपको मतलब एक बार बीच में जाके, if it's taking longer than expected, एक बार आपको जाके वहां पे देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए वहां। Okay. Yeah. Okay. Now coming on the second remedy. Now coming on the second remedy. Second remedy is about visa or PR. Many of us we travel for many purposes. We travel for education, we travel for job or business, we travel for pleasure and leisure, we travel for various business, various reasons, of course, and we require some other kind of visa. Or we are staying on some foreign land, we want to come back to a motherland, we require a visa or PR. It's a very, very common, feature of any kind of job, business, education, or any family, I would say. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फॉरेन लैंड पे गए, वहां पे हमारा वीजा पीआर वापस आने के लिए लग ही नहीं रहा है। और कई बार ऐसे भी होता है कि हमको जहाँ जाना है, सपोज वी आर स्टेइंग इन इंडिया एंड वी वांट टू गो टू सम अदर कंट्री, हमको जहाँ पे जाना है वहां का वीजा एंड पीआर में बार बार कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रही है, कुछ ना कुछ उसमें ऑब्स्टेकल्स आ जा रहे हैं। डिस्पाइट ऑल आवर एफर्ट्स, थिंग्स आर स्टक एंड दे आर गेटिंग ऑन होल्ड। What do we do in that case? Again, we have a very, very simple but effective remedy for the same. On the screen, all of you can see, we have a pair of green parrot. And it's also written over there, male parrot, male. Of course, parrots maybe we have gender. So in this case, you have to procure 2 green parrots, the 2 green male parrot. जब आप पैरट खरीदने जाओगे, then you can ask the owner, you can ask the person who's selling those bird seller,
कि हमको मेल पैरट चाहिए, एंड दे वुड टेल यू कि मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस है, एंड दे विल गिव यू द मेल पैरट. You have to buy 2 male parrots. You have to bring them to your home. आपको उन दोनों को अपने घर लेके आना है. 1 वीक तक आपको उन दोनों पैरट्स की सेवा करनी है. आप उनको बिल्कुल आप केज में ही रखो. इट्स नॉट दैट कि आप उसको बाहर निकाल लिए. आप उनको केज में ही रखो एंड आपको उसकी सेवा करनी. 1 वीक तक उसकी सेवा करनी. एंड रोज 11 times you have to chant राम 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 in front of them. You can chant any god's name. जो भी गॉड आपके, जो भी इष्ट देवी देवता है, आप उनका नाम भी उनके सामने चैंट कर सकते हैं. You can chant राम राम, you can chant कृष्णा कृष्णा, you can chant दादी दादी. जो भी आपको चैंट करना हो, आपके जो भी इष्ट देव है, उनका नाम आप बिल्कुल चैंट कर सकते हैं 11 times रेगुलरली. एंड 1 वीक तक आपको सेवा करनी है उनकी. आफ्टर 1 वीक आपको इन दोनों पैरट्स को उड़ा देना है विथ एन इंटेंशन. जो इंसान का वीजा या पीआर नहीं लग रहा है, अगर वो पर्सन उसको उड़ाए, बहुत अच्छी बात है. बट कई बार ऐसा है कि पर्सन किसी फॉरेन लैंड में, वहां पे वो रेमेडी नहीं कर सकते, उनके घर वाले ये रेमेडी कर रहे हैं अपने मदरलैंड में रह के. तो जो पर्सन के लिए अगर कोई और रेमेडी कर रहा है, तो उसका नाम लेके उनको उस पैरट को उड़ा देना है, ये कहते हुए मेरा वीजा एंड पीआर पास हो गया है. विथ अ पॉजिटिव एफर्मेशन यू हैव टू अफर्म मेरा वीजा और पीआर जो भी आपका है, इशू है, वो पास हो गया है. पैरट को 1 हफ्ते तक हम सेवा करने के लिए किस लिए बोलते हैं? क्वेश्चन कम्स अप टू मी अ नंबर ऑफ टाइम्स. व्हाई डू वी आस्क द पैरट्स टू बी केप्ट इन योर हाउस फॉर 1 वीक? जनरली क्या होता है, जो भी बर्ड सेलर्स होते हैं, उन लोग उस पैरट उनके पास लंबे समय तक रहते हैं. एंड दे ऑल्सो मेक देम स्लाइटली ड्रग्ड सो दैट वो लोग उनको परेशान नहीं करे, ज्यादा आवाज नहीं करे. तो क्या होता है, अगर आप इमिडिएटली लेके इमिडिएटली उसको उड़ा दोगे ना, तो वो पैरट घूम फिर के वापस अपने मालिक के पास, जो उसका बर्ड सेलर था, जहां से आपने उसको परचेज किया था, घूम फिर के वापस वो उसके पास ही चले जाएंगे. आपने अपने हिसाब से रेमेडी की, यू हैव स्पेंड टाइम एनर्जी मनी ओवर द रेमेडी, बट ultimately remedy was incomplete as the parrot went back to the same cage from where he was relieved. So we have to keep them for 1 week in our house so that the parrot जो उनका drugs का असर है वो भी खत्म हो जाए. And also they forget that they have to go back to the same person whom they were kept with for a long time. And जब हम उनके सामने राम राम की माला जपते हैं, ऐसे भी वहां का जो उनकी जो एनर्जी होती है, वो बिल्कुल चेंज होके पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है. उसके बाद जब आप उनको आदेश देते हो कि मेरा वीजा एंड पीआर पास हो गया है, डेफिनेटली इट वर्क वंडर्स फॉर दैट पर्सन. जिसका वीजा एंड पीआर, अगर वो खुद ये काम कर सके, बहुत अच्छी बात है. In the case of some limitations, if the person is in foreign land, is unable to do, if the person is a child, जैसा भी होता है, person is unable to do, उनकी जगह पे उनके फैमिली मेंबर बिल्कुल ये रेमेडी कर सकते हैं. And definitely yes, they will get positive results. I hope it was clear for everyone. Okay. मैम Yes. अगेन जैसे पहले रेमेडी में आपने बोला था स्पेसिफिक डे एंड टाइम, इसके लिए कुछ है क्या डे एंड टाइम? Yeah. Thank you so much for reminding me of the day and time. इसका कोई टाइम नहीं है, बट हाँ, इसका टाइम भी है. इसका डे होगा वेडनेसडे. जिस दिन आपको पैरट को फ्री करना है, वो डे होगा वेडनेसडे, यानी कि बुधवार. टाइम शुड बी ड्यूरिंग द डे टाइम, बिकॉज रात के समय अगर आप पैरट को रिलीज करोगे, तो वो रिलीज होना नहीं चाहेगा, वो वहां से उड़ना नहीं चाहेगा. So try to do during the daytime so that the parrots can, they can released very happily, and they also understand that they are being released. Thank you so much for reminding me of this specification. But this Jayashree is ji, for you are saying sir, yeah, for day of releasing, right? I am yes. saying for getting them in our house. For getting Is them there? in your house, for example, if you're bringing them on Tuesday, you're releasing on Wednesday, 7 days ho gaya. For example, you're bringing them on Saturday and you're releasing on Wednesday, it's a shorter duration. So you can keep them for longer duration. You can keep them for more than 7 days, but you can't keep them for less than 7 days. So if Right, you're but bringing on Saturday, then you have to release them on
next Wednesday. Understand. So day should be Wednesday only, right? Yes, date of Any release date. should be Wednesday. Yes. ओके, थैंक यू। एंड वो राम नाम का जप करना है, वो कितनी माला करनी है ऐसा? 11 बार आपको एटलीस्ट करना है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो आप पूरी 108 की माला भी कर सकते हो, लेकिन वो ऐसे आपको करना है कि वो चाय पी पैरेंट के को आई है ना? सुनाई पड़े, उनके पास खड़े होकर करना है ताकि वो उनको सुनाई पड़े। राइट, Yeah. थैंक यू। Thank you so much, Prasad ji. Jayashree ji, you want to say something? या राधे राधे, कैसे हो? Radhe Radhe. I am well. Tell me. मुझे जो आपने प्रॉपर्टी सेल का जरा रिपीट करेंगे? मैं अभी ज्वाइंट हुई तो मेरा Yeah, वो sure. श्योर डेफिनेटली मैं उसको रिपीट करूंगी। मैं एक बार जो और रेमेडीज है उनको कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो फर्स्ट रेमेडी वापस से मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगी। डेफिनेटली आई विल। ओके, या थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी है मोबाइल वॉलपेपर्स के ऊपर। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हर समय 24/7 हमारे हाथ में या हमारे आसपास ही रहता है। मोबाइल इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which runs on a SIM number, and वो जो नंबर होता है लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है। किसी को अगर हम ये बोल दें कि अपना नंबर चेंज कर लो तो उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने उसकी जान मांग ली हो, किसी के प्राण मांग ली हो। इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है उस टाइम। आपके घर में कोई सामान कम बेसी हो जाए, लेकिन मोबाइल में डेटा कभी खत्म नहीं होगा। पर्सन में शाउट ऑन देयर स्टाफ कि मोबाइल में बिल टाइम पे क्यों नहीं भरा, जो इसमें नोटिफिकेशन आ गया। मोबाइल इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट। Mobile is so very important, starting from your bank transactions to any kind of entertainment, from school assignments to professional commitments. Everything is done on the mobile. Mobile is also very useful and helpful because that was the only device which kept us going during lockdown. तो मोबाइल जो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम दिन में कम से कम 10 बार से लेकर 100 बार तक अपने मोबाइल को खोलते होंगे। उसके ऊपर हम पासवर्ड लगाते कि कोई हमारा कंटेंट ना देख ले। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब पासवर्ड से हम मोबाइल खोलते हैं, सबसे पहले आती है एक स्क्रीन हमारे सामने, दैट इज अ लॉक स्क्रीन। वहां पे आपके पास जगह होता है एक वॉलपेपर इंस्टॉल करने का। अगेन वी गो टू द सेकेंड स्क्रीन, वो आता है हमारा होम स्क्रीन। वहां पर भी आपके पास जगह एक वॉलपेपर इंस्टॉल करने का। तो कोई भी चीज को अगर आप बराबर बार बार देखते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो चीज या वो पिक्चर एनीथिंग, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। It plays a very impactful role on our subconscious mind, and we can also rewire our subconscious mind via the help of pictures. Vastu science has proved this. Person's mind can be rewired with the help of pictures. That's why in Vastu science we use pictures in various forms in various directions of any property, be it home or office or anything else. Yes? So why not mobile wallpaper? Because वो हमेशा हमारे हाथ या हमारे आसपास रहता है। Yes? तो उसके wallpapers कितने effective हो सकते हैं हमारे लिए? So I'll give few examples of mobile wallpaper. First being the standing lion. Now, why standing lion? See, lion is a symbol of courage. Lion is a symbol of authority. Lion is also a symbol for, aggression and also for some kind of kingship. जंगल का राजा है भाई लायन। एक बार दहाड़ेगा, एक बार गुर्राएगा, सब पूरा जंगल शांत हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वी आर अनेबल टू स्टैंड फॉर आवर ओन सेल्फ। कई जगह पे ऐसी होती है, बी प्रोफेशनल फ्रंट और बी योर डोमेस्टिक फ्रंट, यू आर अनेबल टू स्पीक फॉर योर ओन सेल्फ डिस्पाइट बीइंग करेक्ट। बॉस के सामने आप कुछ कहना चाहते हो कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये प्रोजेक्ट आपकी वजह से क्रैश नहीं हुआ, टेंडर आपकी वजह से कैंसिल नहीं हुआ, but despite all your efforts you are unable to speak in front of your boss with it may be anything. It may be respect, it may be fear, it may be the fear of losing the job, or it may be simple the inability to speak upfront. कोई भी रीजन हो सकता है।
This reason goes for any sector of the society, starting from a student to a homemaker, to a professional, to a businessman, to a team leader, to a staff. किसी के साथ भी ये चीजें हो सकती हैं. वो लोग क्या करेंगे, पीठ पीछे क्रिटिसाइज कर लेंगे, पीठ पीछे रो लेंगे, किसी और के साथ मन की भड़ास निकालेंगे, बट जहां सामने खड़े होके अपने हक के लिए बोलने की या तो लड़ने की बारी आएगी, वहां पे जैसे उनके मुंह पे किसी ने सिलाई कर दी हो. अब क्या करें? रेमेडीज आपने बहुत सारी करी, मगर फिर भी आपके अंदर वो साहस नहीं जुटा पाते. ऐसे सिचुएशन में वी हैव अ वेरी सिंपल रेमेडी ऑफ मोबाइल वॉलपेपर. फिर आपको ऐसा भी बोलना है कि जो कि मतलब जिस बात में लॉजिक हो. ऐसे तो नहीं है ना बोलने के सेक के लिए खाली आपको बोलना है. You should be logical, you should be heard, you should be speaking with wisdom. आलतू फालतू बातें आपको नहीं करनी है. So you can install the pic of a standing lion. You can install the pic of a standing lion on your mobile wallpaper. It could be your home screen wallpaper, it could be your lock screen wallpaper, either of them. And the background should be any shade of yellow. जैसे आप यहाँ देखते हो, मैंने येलो ochre yellow का शेड लगाया. It can be any shade of yellow. Yellow again is the color for the planet Jupiter. So it represents knowledge and wisdom. Lion, as I said earlier, lion is a symbol of courage, symbol for aggression, symbol for authority, leadership also. So people who are unable to stand for themselves, people who are unable to speak for themselves in the correct place, in the correct way, they are unable to express their feelings or emotions in the right manner. Of course, yes, they can use the pic of a standing lion with a yellow background. So whenever they are speaking, they are being heard, and they're also speaking logically and with wisdom. Yes, any questions on this? Okay, no questions. Coming to the next remedy. It again is about, yes, tell me. Other than line, can we use any other wallpaper? I didn't get you, Prasad ji. आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, आप क्या बोल रहे हो? अभी आ रही है? हाँ, tell me. Other than line, we the wallpapers we can use. That is what I must. I'm unable to hear you, so I'll take up all the queries at the end of the session. I think it would be easier for everyone. Yeah. Now coming to the next wallpaper remedy, it is also indeed a very easy but effective remedy. It is a remedy of running horses. That too in the background for green. Colors हमारी life में बहुत ज़्यादा important रखते हैं. There are few things in our life which we know कि they have to be of that color only. If we imagine hair, we imagine black. If we imagine sky, then we imagine blue. And if we imagine sun, we imagine orange. If we imagine moon, then we imagine white. Colors play a very, very important role in our life, and they also play a very important impact on our subconscious mind. So whenever we imagine green grass, green plants. Yes, we imagine green, so we imagine these things. So people who lack speed in their life, they are very, very pessimistic, or they lack speed in their life. They have a laid back attitude. They do their task very slowly. They want to speed up, but still they are doing their task slowly. They are unable to speed up for any reason. They can install the pic of running horses on their mobile wallpaper with a green background. Now, why green? Because green again is the color for speed, growth, and prosperity. When we imagine green trees again are the symbol for growth. Because छोटा सा बीज डालते मिट्टी में बड़ा tree बन जाता है. It's like that. They consistently show growth in anyone's life. So when we install green background, it shows growth also, consistent growth, and also indicates speed. Running horses indicate speed. So when you install this wallpaper on your mobile, as a mobile wallpaper in home screen or lock screen, definitely you get the positive results over there. It is a symbol of speed and power.
both together. Yes. Coming to the next remedy. Now, this remedy is regarding relationships, and it is also a very, very important and powerful remedy. Since it's a long remedy, so I'm taking it at the end of the session. Yeah. ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग चाहो तो इस डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी या नोटबुक में बना भी सकते हो. Yes. This session will also be available on YouTube, my YouTube channel. So you can also, get it from there. But if you want, you can make this diagram in your notebook or copy. So it would be easier for everyone to understand. All of us struggle in our relationships. Relationships can be in any form. It could be mother or son, parents and children. It could be between your partners, husband, wife, or your partners. It could be between business partners, teacher or student, mother-in-law, daughter-in-law, any relationship. किसी भी तरह का कोई भी relationship हो, वहां पे you want to improve the relationship. Relationship has been malignated, it has been distorted for any reason. कोई भी रीजन से आपका रिलेशनशिप सफर कर रहा है, किसी की वजह से भी सफर कर रहा है, यू थिंक some other person has been responsible for that malignancy over there. Not to worry. I'll give you a very, very effective remedy to improve relationship with that person. What you require, as you can see on the screen, everyone can see on the screen. Things required are very few things we require. जो घर में सामान है बिल्कुल उसी से ही हो जाएगा. We require a red pen. We require भोजपत्र. भोजपत्र is available in पूजा भंडार. पूजा भंडार में भोजपत्र, पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहां पे इजिली आपको मिल जाएगा. We require red thread. रेड थ्रेड यानी कि जो मोली होता है आप वो भी यूज कर सकते हो. प्लेन रेड थ्रेड जो आता है पूजा वाला आप वो भी यूज कर सकते हो. एंड वी वांट अ हनी बॉटल. हनी की जो बॉटल है वो यूज्ड नहीं होनी चाहिए. इट हैज टू बी अ न्यू फ्रेश सील्ड बॉटल. घर में आपके हनी रखी उसी बॉटल को आपने यूज कर लिया. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. यस. अब हमें क्या करना है, जो ये पूरा सामान आपने लिया, भोजपत्र, रेड पेन, रेड थ्रेड, हनी बॉटल, चारों सामान को आपको ठाकुर जी के सामने रखे आपको सबसे पहले एक हनुमान चालीसा का जाप करना है. पूरा सामान उनके सामने रखे. आपके कपड़े साफ धुले हुए होने चाहिए. यस. एंड आपको जो भी करना है ये काम आपको 12 से 4 बजे के बीच में करना है. आपके कपड़े साफ धुले हुए होने चाहिए. आपका ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए कि यस हमको रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हमको ये काम करना है. जब आप ये यंत्र बनाएंगे उस समय में यू डोंट हैव टू टॉक विद एनीवन. नो इशाराबाजी में टॉकिंग, नथिंग. बिल्कुल आपको शांत रह के पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यंत्र बनाने के ऊपर ही आपको देना है. आपने ठाकुर जी के सामने रखा, हनुमान चालीसा का जाप किया, फिर आपको भोजपत्र लेना है. यस. भोजपत्र में रेड पेन से इस तरह से आपको 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं. जो 2 ट्रायंगल्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको ये 2 ट्रायंगल्स उस भोजपत्र के ऊपर रेड कलर की पेन से बनाने. इसी तरह से 2 ट्रायंगल ऊपर नीचे आपको बनाने. दोनों ट्रायंगल के बीच में आपको नाम लिखना है. किसका नाम आपको लिखना है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वहां पे किसका नाम लिखना है. अपना नाम लिखना है? नहीं. You have to write the name of the person with whom you want to improve your relationships or you want to mend your relationships with that person. वो पर्सन चाहे जो भी हो, उसका पूरा नाम आपको वहां पे लिखना है. एंड ये ट्रायंगल्स के जो 6 कॉर्नर्स है, 1 2 3 1 2 3, 6 कॉर्नर्स के ऊपर रेड पेन से आपको ओम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हो. ये आपने बनाया, आपने लिखा, रेड पेन से आपने लिखा. गिव फ्यू सेकेंड्स फॉर देम टू ड्राई आउट. सूख जाने का टाइम दीजिए उसको. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये भोजपत्र है. उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ऊपर का जो कोना है धीरे से उसको फोल्ड करके, आपने उसको फोल्ड करके उस मोली का एक धागा, जो रेड धागा जो मैंने आपको लेने के लिए बोला है,
It could be moli, it could be plain red thread. पहले आपको वर्टिकली फोल्ड करना है, वर्टिकली फोल्ड करके मोली का वो धागा आपको 3 टाइम्स घुमाना है उसके ऊपर में. यस, 3 टाइम्स आपने घुमाया. उसके बाद आपको वो धागा 3 टाइम्स उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली घुमाना है. 3 टाइम्स वर्टिकली, 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टली. तो क्या होगा, जब वो धागा उसके ऊपर पूरी तरह से 3 टाइम्स आ जाएगा तो ऐसे लगेगा कि उस भोजपत्र की जो एक तो इस तरह से वो फोल्ड होके ऐसे पतला हो जाएगा और उसके ऊपर लगेगा कि ऐसे क्रॉस टाइप का बन गया. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, आई बिलीव. एक क्वेश्चन था कि जब वर्टिकली उसको जब 3 टाइम्स घुमाते हैं धागा को, तो उसको फिर 3 टाइम्स घुमाने के बाद धागा तोड़ के उसके बाद फिर उसको हॉरिजॉन्टली घुमाएंगे क्या? नहीं नहीं, धागा को तोड़ना नहीं है. 3 टाइम्स आपने वर्टिकली घुमाया, उसी धागा को कंटिन्यूएशन में 3 टाइम्स फिर हॉरिजॉन्टली उसको लेके जाना है. डोंट हैव टू ब्रेक द थ्रेड. One question for me. श्योर. जब मैं ये भोजपत्र पे लिखूंगी, एक ही भोजपत्रों पे ये ट्रायंगल्स बनाना है कि? यस यस, एक ही भोजपत्र Yes. पे आपको ये ट्रायंगल ऊपर नीचे बनाना. उसमें बीच में छोटा सा जगह, जितना हो सकता है उतना कम जगह छोड़ना कि आपको नाम खाली वहां पे लिखा जाए. That is एग्जाम्पल आपको वहां right पे on नाम red pen. All रेड things पेन. are यस, red pen रेड पेन. and यस इसको just fold करना है, सीधा करके fold करना है, यस. जैसे हाफ पत्ता fold करते हैं वैसे. नहीं, मैं आपको जैसे वो गोल घुमाना, जैसे कोई भी चीज का पेपर या को हम गोल घुमाते हैं ना. सपोज अच्छा ये गोल. पेपर है तो या ऐसे या ऐसे या घुमाना है आपको. ऐसे ऐसे आपने अच्छा घुमाया. आपका चाहे अच्छा वो 2 बार घूमे, चाहे 3 बार घूमे, चाहे 4 बार घूमे, वो इरेस्पेक्टिव है. फिर आपने या ऐसे धागा बांधना शुरू किया 3 टाइम्स. 3 या टाइम्स हो 3 गया, फिर times. उसको ऐसे बांधना शुरू किया Okay 3 okay टाइम्स. okay ये okay. हो गया. उसके बाद उसको गांठ नहीं मारनी है वहां पे. Just वो करना है. एक्स्ट्रा छोड़ के उसको उसी पे घुमा के छोड़ देना उसको. Okay okay. ठीक है, आपने Thank उसको you. छोड़ दिया. उसके बाद आपके पास हनी की बोतल है. या हनी की बोतल का आप सील तोड़ोगे, ढक्कन या खोलोगे. या वो जो आपके पास भोजपत्र का वो जो लंबा सा स्टिक जैसा बन चुका है, ऐसा स्टिक जैसा बन चुका है, वो या उसको हनी की बोतल में ऐसे डाल देना है आपको. हनी की बोतल आपको उतनी बड़ी लेनी है कि आपका वो भोजपत्र उसके अंदर पूरा घुस जाए. ओके. ठीक है, बोतल में आपने घुसा दिया, उसके ऊपर ढक्कन वापस लगा दिया. यस. ठीक है. हनी की बोतल में थोड़ा स्पेस ऊपर खाली रखना है आपको, ताकि जब आप भोजपत्र उसमें इंसर्ट करो तो वो हनी फैल के बाहर ना आ जाए. तो ओके. थोड़ा सा हनी चाहे आप उसमें से पहले ही खाली कर देना. यस. ठीक है. तो आपने Yes. उसे भोजपत्र को इंसर्ट किया, वापस ढक्कन लगा दिया. बॉटल को आपने वापस उल्टा कर देना है ऐसे, ताकि Yes. जो ऊपर का पोर्शन जो रह जाता है, खाली रह जाता है, जो ऊपर का पोर्शन जो भीगा नहीं है शहद में, उल्टा या करने से वो पूरा भीग जाए उसमें. अच्छा. तो उसको ऐसे उल्टा करके एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर तक छोड़ना है. ओके. उसके बाद वो पूरा बॉटल को उठा के आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको रख देना. नॉर्थ. नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे अक्सर होता है हमारा ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट होता है. सो इफ यू वांट यू कैन आल्सो कीप दैट हनी बॉटल इन योर नॉर्थ ईस्ट. माने आपका जो ईशान कोण है, आपकी जो ठाकुर जी की अलमीरा या जो भी स्पेस ऑल्टार है, अब वहां भी इसको एक साइड में आप उसको रख सकते हो. नॉर्थ आइदर नॉर्थ ईस्ट. यस यस. अच्छा. आई लेकिन एम आपको आस्किंग. एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. या और आपको ये पूरा काम जो करना है, यू हैव टू डू ऑन अ फ्राइडे. You have to do it on a Friday. It should be between 12 and 12 p.m. to 4 p.m. इस टाइम के बीच में आपको करना है. किसी से भी बात नहीं करनी है, शांत रह के आपको ये काम करना है. एंड उसके बाद जब आप उसको स्थापित करोगे अपनी जगह पे, जो डायरेक्शन में आप स्थापित करोगे, आपके मन में यही इंटेंशंस रहनी चाहिए. अगेन यू हैव टू अफर्म माय रिलेशनशिप विद सो एंड सो पर्सन. सपोज पर्सन का नाम है मिस्टर राम. My relationship with Mr. Ram has improved and mended, and we are having a happy relationship onwards. You have to affirm. You have to affirm and keep it over there. And उसको ऐसी जगह पे रखना है कि रोज रोज आपका हाथ ना लगे उस पे. ऐसे नहीं कि आप रोज सफाई कर रहे हो तो रोज उसको उठा के उसको सफाई कर रहे हो. ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे कम से कम वो छुआ जाए. ठीक है.
Yeah, and continue how many days it is kept there? It has to be there. वो उसको वहां पे रहने दीजिए, मतलब at least for 41 days it should be there. Okay. अगर वो ज्यादा भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है. It is kept over there. Okay. हाँ जी. Thank you. Most welcome. May I know whom I am speaking to? I am Anita Diwan. Okay, okay. So this was the remedy regarding improving relationship. Yeah. So now I'll come to the first remedy again, because Jayashree ji has requested to repeat the first remedy of the sale of property because she has joined late. So coming back to the first remedy of sale of property. Sale of property is a very, very important issue for anyone who's owning a property and they want to sell the property. कोई भी कारण से उनकी वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही, क्या तो उनको अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उनको बहुत कम पैसा ऑफर कर रहे हैं. प्रॉपर्टी कोई ऐसी एरिया में जहाँ पे वो सेल नहीं कर पा रहे हो. Any reason or the other, they are unable to sell that property. In that case, you have to take 2 cactus plants. Jayashree ji, I think you are there. आप सुन रहे हो मेरी बात को? हाँ, सुन रही हूँ. Yes. Yeah, I'm here. You have to take 2 cactus plants in 2 flower pots. The cactus plants should Okay. be real, and the soil in the plant, you don't have to prompt, you just listen to me. The cactus plants have to be real, and the soil in the plants also have to be real. Real plants and real soil के वो होने चाहिए. उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वाली जो जगह है, उसमें ताला खुलने के बाद जो फर्स्ट स्पेस आता है उसका, फर्स्ट स्पेस could be your balcony, first space can be the first room of the house or the property, it could be a commercial property also. ताला खोलने के बाद जो पहली जगह वहां पे आती है, वहां पे आप उस प्लांट को रख दो. You have to do this on a Saturday. दिन के समय में करना है, 12 से 4-5 बजे तक के अंदर अंदर आप इसको कर लो. Yes, and definitely you also have to affirm मेरा ये प्रॉपर्टी मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार सेल हो गया है. And your terms and conditions should also be very, very realistic. You don't have to make any unrealistic wish, otherwise the remedy will not work for you. Okay, thank Very, you so very much, ma'am. realistic. Most And welcome. इस अबाउट में मेरे को भी जानना है कि अगर रॉ लैंड है तो उसके लिए इसको प्लेस कैसे करना है कैक्टस को? रॉ लैंड है या तो कैक्टस को वहां पे जो भी रॉ लैंड है तो उसमें कुछ तो बैरिकेशन वगैरह कुछ तो रहेगा ना. बाउंड्री बाउंड्री है, तो जब वो घुसने के बाद जो पहला हिस्सा होता है वहां पे आप उसको प्लेस कर सकते हो. ओके. एंड एक क्वेश्चन और है, जैसे ये जो मोबाइल वॉलपेपर है, 2 आप बताए, तो जो स्टैंडिंग लायन, ओनली सिंगल स्टैंडिंग लायन? यस, सिंगल स्टैंडिंग लायन एक ही होता है, राजा हमेशा एक ही होता है ना. या एंड सेकेंड रेमेडी जो था हॉर्स, रनिंग हॉर्स, यस, इट इज इन वॉलपेपर ग्रीन एंड 2 horses and green background. Green background. ग्रीन बैक. ओके. थैंक यू. Most welcome. एंड जो रनिंग हॉर्स, वो दोनों रनिंग हॉर्स जो है वो बेसिकली अपना करियर में स्पीड के लिए वॉलपेपर है ना? Yes. Growth, prosperity and abundance also, and also for speed in your life, for people who are doing Okay. the task very slowly या उनके काम जल्दी होते नहीं है, किसी भी अच्छा. तरह से उनके काम स्लो होते हैं, और they have a laid back attitude. ऐसे ओके. वो चाहते हैं काम करना, मगर वो किसी भी रीजन से उस काम को नहीं कर पाते. We come Okay. across people like this. We also experience ourselves in the same position at times. एंड ये क्या और कोई वर्क में भी काम करता है ये स्पीड वाला हॉर्स की? मे बी कोई किसी की बच्चे का अगर लेट कुछ हो रहा है, मीन्स शादी का, तो वो अपना मोबाइल पे लगा सकती है? No, No. शादी के Okay. रेमेडीज अलग होते हैं. शादी Okay. के रेमेडीज आर डिफरेंट. ओके. दिस Yeah. इज ओनली बिजनेस एंड रनिंग लाइफ. Yes. ओके. थैंक यू. Most welcome. So, Rashmi ma'am, can you hear me? yeah, may I know who's this? Yeah, Prasad again. हाँ, tell me, प्रसाद जी. हाँ, सो वही मेरा क्वेश्चन वही था कि हॉर्सेस का आपने
एक वो मेरे को आप वापिस शो कर सकते हैं हॉर्सेस का पिक्चर? यस, बिल्कुल शो कर सकती हूँ. Just a moment. So friends, I'm Yeah. coming up with a remedial course class from tomorrow onwards. It's a duration, it's a 3 days class only, and the duration would be 1 hour to 1.5 hours per class. ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, उसके जो वीडियोस होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड इट्स अ स्पेशल ऑफर. द क्लासेस आर ओनली फॉर ₹7,500. Originally priced for ₹10,000. Now for special offer I'm giving them only for 7,500. तो इस तरह के रेमेडीज जो मैंने आप लोग को बताए, irrespective of your time, place and condition, you can use these remedies for yourself or for your clients or anyone in the family. Yes, so if anyone is interested to, because we are starting with the class tomorrow afternoon, so if anyone is interested, you can DM me for the same, for any other information you would want. Yes, coming with the horses picture. Yes, here it is. Yeah. So in that there are two pictures, like 2 horses and other are 5 horses. 5 So horses. Yes. You can वो- install either of them. सूर्य भगवान के जो 12 घोड़े होते हैं, वो भी लगा सकते हो. You can install either of them. या सो मैं वही पूछना चाहता था कि अगर विथ सूर्य भगवान के साथ ही अगर रहेगा वो पिक्चर तो भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, but the background has to be green if you want speed in your life, more speed in your life. ओके. Because या the जैसे colors can be customized according to your choice of, remedies. Colors can always be customized. या कोई वॉर के लिए जैसे कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथीदार या महाराणा प्रताप, वो वैसे वाले भी लगा सकते हैं क्या? जस्ट प्लेन चाहिए, उसके साथ कोई ह्यूमंस नहीं नहीं, चाहिए? प्लेन. सूर्य भगवान का बात अलग है, because he is a god, या but others were human वो beings. So ऐसे उनका या नहीं, स्पेशली वॉर के पिक्चर्स तो हमें अपने मोबाइल वॉलपेपर पे नहीं लगाने चाहिए, because again it fires our subconscious mind in a different way altogether. So we should not ओके. install any pictures of war or any kind of idols also who are in a very aggressive mode. हमको वैसे पिक्चर्स नहीं लगाने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे, वो पिक्चर आपको अपने वॉलपेपर पे बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए. आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो उसी तरह के पिक्चर्स आपको यूज करने चाहिए. वास्तु साइंस हैज प्रूव्ड दिस कि पिक्चर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. किस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. if that picture defining some victory or something like that, so So you have to be clear and specific about the kind of picture you are putting on your wallpaper. That was my only concern. So उसमें आपको identify अगर करना है, so you have to identify the actual meaning of the picture, then you can install it. थैंक यू. Most welcome. एंड इसके लिए भी कोई डे टाइम है? वॉलपेपर लगाने का हाँ. नहीं, उसका कोई टाइम एंड डे वाला बात नहीं. आप कभी भी उसको लगा सकते हो, अभी भी आप लगा सकते हो उसको. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. Anyone having any more questions? Jayashree, you I'm want to say Jayashree. something? हाँ जी, please tell me. हेलो. Yeah. हाँ, वो दोनों प्लांट साथ में लगाना है मैम? 2 प्लांट्स आपको एक साथ लगाने हैं. यस, 2 कैक्टस प्लांट्स लगाने हैं आपको. यस. ओके. और उसका कुछ डे रहेगा कि एनी टाइम? सैटरडे आपको दिन के समय 12 बजे से 4-5 बजे के अंदर आप लगा लो. ओके. थैंक यू सो मच. Most welcome. So I think everyone is done with their questions and I have given all the relevant answers. So we can close the session. Thank you so much everyone for giving your time and energy in this session, to joining this session and making it so much motivating and inspiring by your questions. So I'll be looking forward to your support again. We'll come up with another interesting session soon, and I'll be inviting each one of you again. So if anyone is having any more questions, you can connect with me on DM. So I'll be answering your questions. Thank you so much, everyone. Radhe Radhe, Atma Namaste.
नमस्ते, राधे थैंक यू, राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।